था. आई वॉज अ कंटिन्यूअस फेलियर ड्यूरिंग माई स्कूल डेज. क्यों फेलियर था? मैं स्कूल के पढ़ाई के सिस्टम के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन एटलीस्ट आई कैन चेंज माई सेल्फ. उससे इस सिस्टम को चेंज नहीं किया जा सकता, ना ही मैं अकेला खुद कर पाऊंगा. Hello, folks, and my dear friends. I hope you all guys are doing well in your life. This is the second time that I am going to meet you all. I hope, by the grace of the God, you are healthy enough and you are doing well. Welcome to Max Library. This is your friend Shubham. I would like to give some knowledge and some amount of guidance in another new topic. This topic will be for the concept of learning, along with some sort of time and some amount of failure in today's life. So basically what I want to start is that I will directly come up to the point. Why exactly learning is so much important in today's life? I will start from the school days. We spend our 13 to 15 years of our life in school, in colleges, and we assume that we are getting one of the most best quality of education and learning, that we can do better good things in our future life. We create our life only by studying in schools, colleges. But exactly what I want to ask a questions on ourselves is that, just ask whether the school or the colleges guarantee you that you are going to get something outperforming results in your real life that you have studied. Maybe in some cases it's positive, but out of 100%, 70 to 80% populations, can I say, in my real life experience, that people don't get exactly what they want in their life. Many youths come in my office. Many people calls me and just used to say, "Sir, I don't get that enough amount of satisfactions from the rewards that I'm giving to my company that they are working for." Or they do not even love the job they're engaged in. Why this is so in today's life? People do not love the job they're doing. Why exactly is that? Because the main priority point is that they learn in the schools and colleges in a traditional way. What schools provide the educations, they follow that. What exactly I meant कि जो एजुकेशन सिस्टम अभी चल रहा है हम लोग के इस इंफॉर्मेशन एज पे, वो डिजाइन किया गया है एज पर द ट्रेडिशनल एज. अभी भी एक स्टूडेंट, एक कैंडिडेट वही लर्निंग प्रोसेस में है जो डिजाइन किया गया है एक ट्रेडिशनल सिस्टम व्यू पॉइंट से. आजकल की दुनिया में बच्चे चाहते क्या है, पढ़ना क्या चाहता है, वो है ही नहीं. एजुकेशन मीन्स एकेडमिक क्वालिफिकेशन खत्म होगा, फिर मैं जॉब करना स्टार्ट करूंगा, उसके बाद में थोड़ा बहुत मैं अपने लर्निंग्स करूंगा. वो आज दिन है ही नहीं. क्योंकि पहले का जो जनरेशन था दैट वाज ऑन ट्रेडिशनल बेस, एंड टुडेज जो जनरेशन चल रहा है इज इंफॉर्मेशन एज. 2 मिनट नहीं लगता है टेक्नोलॉजी को बदलने के लिए. आज बेंगलुरु में बैठे हुए काफी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हर एक दिन एक सॉफ्टवेयर ला रहे हैं. सो यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी डे. हाँ, पता है कि मेरे इस वीडियो से और कुछ बुक्स जो पब्लिश हुए हैं जो एक्चुअली रियल फील्ड में काम करता है, उससे इस सिस्टम को चेंज नहीं किया जा सकता, ना ही मैं अकेला खुद कर पाऊंगा. लेकिन एटलीस्ट आई कैन चेंज माई सेल्फ. हाउ? by creating something extracurricular activity while I'm studying those academic qualifications. पढ़ाई करो, अच्छे कुछ बुक्स पढ़ो. If you have a passion, try to make it as a profession. You want to play cricket, you love cricket, you play football, खेलो. बस उस पैशन को प्रोफेशन बनाने की ट्राई करो. Today's generation is so resourceful. इतना रिसोर्स है ना बेटा कि तुम्हें रिसोर्स को यूटिलाइज करना सीखना पड़ेगा. बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, बस उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करके कैसे उसको अपने लाइफ में एक अच्छे ड्रीम बना के उसको सक्सेस के पॉइंट ऑफ में चलोगे,
दैट इज योर वर्क। सो अगर तुम्हें लगता है कि जो मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूं, एक डिजाइन कॉन्सेप्ट जो बनाया गया स्कूल में, शायद मैं जब स्कूल में था तब मुझे भी मैथमेटिक्स नहीं आता था, ना ही मुझे सोशल स्टडीज, साइंस, लिटरेचर, मुझे पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, मुझे सब पसंद नहीं था। आई वॉज वॉन्टिंग समथिंग न्यू इन माई लाइफ, जो मुझे क्लास 10 के बाद में जाके मिला। मुझे एग्जैक्टली स्कूल के टाइम पे मुझे मालूम नहीं था कि व्हाट आई वॉज वॉन्टिंग, व्हाट आई वॉज एक्सपेक्टिंग, बट मुझे वो पसंद नहीं था। आई वॉज अ कंटिन्यूअस फेलियर ड्यूरिंग माई स्कूल डेज। क्यों फेलियर था? क्योंकि मैं अच्छे मार्क्स से प्रोग्रेस नहीं कर रहा था। जो मार्क्स एक्चुअली चाहिए एक प्रोग्रेस के लिए, वो मैं नहीं ला पा रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं था। आई लव समथिंग एल्स बट आई वॉज डूइंग समथिंग एल्स। क्लास 10 पास किया, उसके बाद जाके मालूम चला कि जो मैं चाहता हूं मुझे मिला है। मुझे बिजनेस अच्छा लगता है, मुझे बिजनेस के बारे में बोलना अच्छा लगता है, मुझे फाइनेंस के बारे में बोलना अच्छा लगता है, मुझे स्टॉक मार्केट में बोलना अच्छा लगता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने अच्छा लगता है। ये मेरा पैशन था। मुझे एक मोटिवेशन स्पीकर बनना था, मुझे उसमें अच्छा लगता है, मुझे बोलना अच्छा लगता है। आई लाइक टू स्पीक इन पब्लिक वेरी मच। आज भी बोलता हूँ, काफी सारे ऑडियंस के सामने बोलता हूँ, डर नहीं लगता मुझे। क्यों? क्योंकि मेरा पैशन है और मैं इसको प्रोफेशन बनाता हूँ। सो मैंने अपनी एग्जाम्पल से एक छोटा सा एक लाइट देने की कोशिश किया है। स्कूल्स में हो, पढ़ाई कर रहे हो, गुड, वेरी गुड, वो चाहिए, वो एक बेस है। अगर बेस अच्छा स्ट्रांग नहीं हुआ तो हम ऊपर का जो पोर्शन है, जो हम जहां जाने वाले हैं, उसको कभी नहीं बना पाएंगे। सो यू नीड अ बेसिक क्वालिफिकेशन फ्रॉम योर स्कूल्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ट्राई टू डू समथिंग एक्स्ट्रा इन योर लाइफ। मेरे लाइफ में अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा मैं करिकुलर एक्टिविटी है, सिंपल, रीडिंग बुक्स। आई स्पेंड अ डे, एंटायर डे बाय जस्ट रीडिंग बुक्स। वीडियोस देखता हूँ, थोड़ा बहुत एजुकेशनल वीडियोस। आप लोगों के भलाई के लिए शायद मैं कुछ ट्राई कर पा रहा हूं कि मैं कुछ दे पाऊं। सो इफ यू आर इन द फील्ड ऑफ डूइंग समथिंग न्यू, ट्राई टू लर्न फर्स्ट। If you are not in the process of learning, you can't do something else. आज भी मुझे ये सोच के बहुत डर लगता है कि मैंने अपने लाइफ के 15 से 18 साल मैंने अपने स्कूल में बिताए, लेकिन जो लर्निंग मैंने अपने स्कूल में मुझे मिला था, वो शायद ही आज कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे अपने रियल फील्ड, रियल लाइफ में मुझे कभी प्रैक्टिकल में अप्लाई हो रहा है। आज मैं जो हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, ये उसका पूरा क्रेडिट जो मैं देना चाहता हूँ, इट्स टोटली अपॉन द बुक्स दैट आई हैव लर्न आउट ऑफ माय एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। स्कूल पास होने के बाद से लोग दौड़ते हैं नौकरी के लिए, कुछ छोटा मोटा बिजनेस के लिए, इन द होप ऑफ दैट कि जो पढ़ाई मैंने करके आया हूँ स्कूल में, शायद उससे कुछ हेल्प मिल जाए, अच्छे से कंपनी में जॉब मिल जाए, छोटा मोटा बिजनेस करने को मिल जाए। क्या वाकई में ये होता है सबके लाइफ में? काफी हद तक हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टाइम पे ये नहीं होता है। पीपल स्टार्ट ब्लेमिंग देमसेल्व्स। स्टूडेंट एक टाइम पे आके, वो जब अपने एक्सपोजर मिलता है अपने रियल लाइफ वर्ल्ड में, वो एक क्वेश्चन पूछता है कि those education that I have got in my past previous 13 to 15 years, they are not giving a potential in today's my life, what I'm earning today. So basically what I want to point is that आज के एजुकेशन सिस्टम जो डिजाइन किया गया है is totally upon the choice of those educations organization जो इसको every day इसको ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ से सोच रहे हैं। They don't care about what the people, what the candidate, what a student actually expect, क्योंकि उन लोगों का ये फर्क ही नहीं पड़ता है कि बाहर की दुनिया में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बिजनेस की दुनिया में चल क्या रहा है। बस एक प्रोग्रेस के लिए एक मेजरमेंट रख दिया कि मार्कशीट में परसेंटेज करके एक मेजरमेंट होता है। इफ यू आर दिस परसेंटेज, यू आर सो मच सक्सेस। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सक्सेस का मीनिंग क्या है? Nobody can even determine what exactly the meaning of success is.
आज मेरे लिए सक्सेस है कि मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, शायद मैं आप लोगों के कुछ चेंज कर पाऊं। किसी के लिए सक्सेस कुछ और है। आज एक क्लास 8 के पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उसके लिए सक्सेस क्या है कि कम से कम अच्छा मार्क्स लेके मैं 9 में ग्रेड में पास हो जाऊं। क्लास 10 के बच्चे के लिए सक्सेस ये है कि मैं बस 10 का मार्क्स इतने परसेंटेज में लाके दिखाऊं ताकि मेरे मम्मी पापा खुश हो जाए, टीचर्स खुश हो जाए, उसके लिए वो सक्सेस है। एक मिलियनियर, बिलियनियर, ट्रिलियनियर जो भी मैं बोल सकता हूँ उसके लिए सक्सेस यही है कि मैं एक अच्छा और भी ज्यादा बड़ा मैं विला ले सकूं, कुछ अनएक्सपेक्टेड मैं कुछ करके दिखाऊं। वो होते सबके लिए सक्सेस का डेफिनेशन। मैं स्कूल के पढ़ाई के सिस्टम के अगेंस्ट में नहीं हूं, बिकॉज मैंने भी अपना बेसिक क्वालिफिकेशन पूरा किया हुआ है। बस इतना बताने के कोशिश करता हूँ कि जो गलती मैंने किया है वो आप लोग ना करें। मैंने अपने स्कूल लाइफ में अपने स्कूल के ऊपर मैं डिपेंड था। जो मुझे चाहिए था वो मैं ढूंढने का कोशिश तो नहीं किया, जिसके लिए मुझे पूरा एंटायर स्कूल लाइफ में मुझे डिस्ट्रेस में रहना पड़ा। आई फेस न्यूमरस फेलियर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लेकिन तभी से अगर मैं अपने पैशन को फॉलो कर लिया होता तो शायद मैं खुश रहता अपने स्कूल में। अगर स्कूल के सिस्टम के अगेंस्ट में, कॉलेज के एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट में अगर मैं कुछ बोल नहीं सकता, कुछ चेंजेस नहीं कर सकता, तो मैं खुद को तो चेंज कर सकता हूँ जो मेरे बस में हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, चेंज योर व्यू पॉइंट। जो अच्छा लगता है करो, पढ़ाई करना, खेलना, मोटिवेशन के रिलेटेड कुछ बात करना, डायरी लिखना, जो अच्छा लगता है। बस बैठे मत रहो। एंड ऑल्सो लर्निंग टोटली डिपेंड्स अपॉन द टाइम ऑल्सो। अभी स्कूल में हो ना, कॉलेजेस में हो, पेरेंट्स है ऊपर में, टीचर्स गाइड कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ रहा है बाहर का दुनिया कैसा है। मैं अपने पिछले 8 से 9 साल के एक्सपीरियंस से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो मैंने फेस किया है, जो बाहर के दुनिया परसीव करते हैं, जो परसेप्शन रखते हैं हम लोगों से, एक्सपेक्टेशन करते हैं हम जैसे स्टूडेंट से, वो हमने कभी सीखा ही नहीं अपने स्कूल लाइफ में। सो हमेशा अगर आप पढ़ाई कर रहे हो अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, हमेशा ये मोटिव लेके करो कि व्हाट एग्जैक्टली द आउटसाइड वर्ल्ड वांट्स, उसके हिसाब से अपने आप को डेवलप करो। बिकॉज टूडेज दिस जनरेशन इज टर्म्ड एज इंफॉर्मेशन एज, नॉट द ट्रेडिशनल एज। इस दुनिया को इंफॉर्मेशन चाहिए। आप गूगल में सर्च करके देखो, इंफॉर्मेशन को भी सेल किया जाता है हाई एमएनसी कंपनीज में। हमारे डाटा को सेल किया जाता है। आप सोच भी नहीं सकते कि इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री कितना बड़ा मार्केट है। मैं भी मार्केट में नहीं जाऊंगा, वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। बस आपको फोकस यही था कि इफ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, अगर वो करना चाहते हैं तो पहले उसके अच्छे से एक नॉलेज लीजिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए। If your dreams, what you are thinking in your mind, are not supported by proper learning and skills, your dream will be exactly that ship which is sailing in an ocean and trying to find its correct direction. So, पढ़ाई करो, जो करना है करो, बस टाइम को रेस्पेक्ट करके चलते जाओ। एक क्वेश्चन एक दिन ज़रूर पुट अप होगा कि जो आपने अपने लाइफ में अचीव किया है, पैसा जो कमा लिया आपने, वेल्थ जो आपने एक्वायर कर लिया, क्या वाकई में उसको अचीव करने के लिए आपने 100% डेडिकेशन विद प्रोसेस लर्निंग के साथ में आपने किया था? आस्क योरसेल्फ। अगर आज आपने क्वेश्चंस नहीं किया अपने आप को, और अगर आज अपने आप को वो आंसर्स ढूंढने में अगर नहीं लगे रहे, अगर आंसर्स नहीं मिला, तो एक समय ऐसा आएगा कि लोग आपसे क्वेश्चन मांगेंगे और आप पूरे लाइफ अंटिल योर डेथ उस आंसर को ढूंढने में लगे रहेंगे। दैट विल बी द डिफिकल्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। सो लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग लर्निंग, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द लर्निंग विच वी आर गेटिंग इन स्कूल्स एंड कॉलेज, दैट इज जस्ट सिंपली ट्रेडिशनल लर्निंग। वी नीड टू थिंक समथिंग बिग इनफ, we need to grow something big enough. That's why मेरे मैक्स लाइब्रेरी का कोट है, जो टैगलाइन है, think something big, बड़ा सोचो। हाँ, सोचने में क्या है, कुछ लोग कहेंगे
सोच तो मैं कुछ भी लूंगा, लेकिन करने में दिक्कत है। अरे भाई, करने में क्यों दिक्कत है? इफ यू हैव थॉट समथिंग वेरी बिग इनफ इन योर माइंड, अगर उस थॉट को सपोर्ट करने के लिए अच्छा सा अगर आप स्टडी और एनालिसिस के साथ चल रहे हैं, तो जरूर वो बिग जो ड्रीम आपने सोचा वो एक दिन होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके पास में एक अच्छा लर्निंग है, स्किल्स है, टैलेंट है। मैं फिर से बता रहा हूं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड ऑफ टैलेंट व्हाट यू हैव इन योर चाइल्डहुड। द टैलेंट which you are getting by your efforts। मैथमेटिक्स में कोई भी सम प्रॉब्लम सॉल्व करके मैं ला सकता हूँ अच्छा मार्क्स। कोई भी चीज को मैं रट्टा मार के, मैं सीख के अच्छा सा पेपर लिख के मैं आ सकता हूँ। रियल लाइफ का अगर एक प्रॉब्लम दे दिया जाए ना, उसमें आपका मार्क्स तय नहीं करता आप कितना सक्सेस हुए, उसमें तय करता है कि आप कितना लोगों को समझा में काबिल हुए। आप जो समझ गए दैट्स गुड, बट कितना आपने समझा पाया लोगों को, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो इन ट्रेडिशनल एजुकेशन एक साइडेड पढ़ाई होता है, इन रियल लाइफ एजुकेशन टू साइडेड पढ़ाई होता है। व्हाट मीन्स इज दैट अगर आपके पास नॉलेज है, शेयर कीजिए दूसरे लोगों के साथ में, इससे आपका नॉलेज घटेगा नहीं, बढ़ेगा। हाउ? व्हेन यू एक्सचेंज योर नॉलेज, अ टू सिस्टम बॉन्ड। आपका नॉलेज किसी और के लिए रिसोर्स बन सकता है और किसी और का नॉलेज आपके लिए वो रिसोर्स बन सकता है। एंड व्हाट डज रिसोर्स क्रिएट? रिसोर्स क्रिएट फुलफिलमेंट। सो दैट इज द थिंग। अगले काफी सारे वीडियोस में मैं बहुत कुछ बोलने वाला हूँ। हाँ, थोड़ा लेट वीडियोस अपलोड हो रहा है क्योंकि ये मेरा स्टार्टिंग है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके मैं सिंप्लीफाई करूँगा और मैं अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के हिसाब से मैं बनाऊंगा। जैसे कि मैंने स्टोरी बोला एजुकेशन में, मैं अपनी तरफ से मैं कोई कंटेंट बनाने की ट्राई नहीं करूंगा। आप लोग जो बोलेंगे मैं उस हिसाब से ही मैं अपने कंटेंट को क्रिएट करूंगा। आपको जो चाहिए कमेंट कीजिए, लेकिन उसके पहले तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा वीडियोस आ रहा है और मैं क्या मांग क्या रहा हूँ आप लोगों से। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, वीडियोस देखिए अच्छे से, हो सके तो अपने पेरेंट्स के साथ देखिए इस एजुकेशनल वीडियोस को। सो फॉर टुडेज वीडियो, अगर मैंने कुछ गलत बोला है, किसी के ओपिनियन के बाहर बोला है, अपॉलॉजी एक्सेप्टेड। बट मुझे लगता नहीं कि मुझे कुछ गलत मैंने बोला है, फिर भी मैं अपॉलॉजीज मांग रहा हूँ। दैट्स इट फॉर दिस टुडेज इवनिंग। आज इतना ही। अगले वीडियोस में हम और भी कुछ सीखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में, कॉन्क्रीट फॉर्म में मैं एक सब्जेक्ट वाइज आऊंगा। अभी तो फिलहाल मैं एक जनरल नॉलेज दे रहा हूँ, क्योंकि स्टडीज और लर्निंग करने के लिए पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि फ्यूचर में जो वीडियोस यहाँ पे डालने जा रहा हूँ, दैट विल बी ऑफ समथिंग वेरी इन ए वेरी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव मैटर। कुछ टर्मिनोलॉजीज होगा जो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं अभी इसको एक लर्निंग के प्रोसेस से इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करूँगा। मेरे वीडियोस के साथ फेमिलियर रहिए, कुछ ना कुछ, ज्यादा तो नहीं, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा भी था कि मैं उतना कुछ हाईली प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ। बट जितना मेरे पास में है, जितना मैंने नॉलेज एक्वायर किया है, उसका 0, 10, 20 भी नहीं, 100% मैं आपको ही दूंगा, क्योंकि मुझे बोलना अच्छा लगता है, लोगों से बात करना अच्छा लगता है। एंड आई थिंक ये प्लेटफॉर्म सही है आप लोगों से बात करने के लिए। अब आई होप यू गाइज आर गोइंग वेल, एंड अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। एंड टुडेज नाइट, गुड नाइट।